last semester, and today I am presenting you the session on the very emerging field of psychology, which is organizational psychology. In Pakistan, if we talk about the scope of industrial and organizational psychology, it is one of the fields which is not getting the limelight which it deserves. And what is the reason behind, what are the benefits of industrial organizational psychology, the financial aspects and the assessment centers, HR, entrepreneurship. And to talk about all these related factors, today we have two esteemed guests who have joined us in today's podcast. First we have Ms. Hafsa Ahmed. Assalamu alaikum ma'am, kaise hain aap? And next we have Mr. Ahmed Toki. First I want to introduce our guest. Ms. Hafsa Ahmed is an industrial organizational psychologist. She's a teacher and HR enthusiast, worked as an assistant manager HR in a leading software house involved in various assessment centers and trainings. And our next guest, Mr. Ahmed Toki, who is working as an enablers trainer, Amazon, eBay, Walmart, and representative district Okara. A freelancer and an entrepreneur working as an online business specialist in USA and UK market. Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us today. How are you doing? Thank you, sir. Okay, so shall we start the podcast? So my first question is from you, Ms. Hafsa. Before we begin the session, I would like to request you to introduce the field of IO psychology as to our audience. What is basically industrial organizational psychology? Basically, organizational psychology is the scientific study of the human behavior at a workplace or in an organization. Okay, it basically focuses on how the organization affects the human behavior, the employees, and how the employees behavior affect the organization. Okay, so it basically applies the psychological rules, psychological principles, and the knowledge to solve the problems happening at the workplace. Okay, तो basically ये क्या होता है कि human behavior को at a workplace जहाँ पर there are so many employees, तो उनको आप deal कर रहे होते हो इतना organization में, ठीक है? तो basically organizational जो psychology है वो study करती है human behavior को at a workplace. Best. मतलब जब हम अगर बात करें साथ human behavior in an organization, so you have a wide range of expertise in business field में, तो आप क्या मतलब suggest करेंगे कि as a young psychologist क्या competences required होती हैं, कैसे skills हैं जो हमें required होते हैं different domains के, अगर हम business psychology या IO psychology की बात करें? Very much बहुत सारी domains होती हैं, बहुत सारे traits होते हैं जो required होती हैं किसी भी IO psychologist के लिए, जिसमें मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि empathy उसके लिए बहुत important है. She should have patience, cross culture, sensitivity का पता होना चाहिए, solid ethical core values होनी चाहिए उसके पास. Problem solving technique is very important for IO psychologists, and how you tackle your different customers, how you identify the need of the customers. इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरह से बताना चाहिए. मतलब इंटरेक्शंस की हम बात करें तो बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ आई वो ये है कि आईओ साइकोलॉजी इज बेसिकली अबाउट ह्यूमंस और उसके इंटरेक्शंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस तरीके से मतलब डील करते हो लोगों के साथ. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या डिफरेंट जॉब टाइटल्स हैं जो एक एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट उसमें अगर मतलब ये स्पेशलाइजेशन, तो क्या जॉब टाइटल्स हैं जिनमें वो काम कर सकते हैं? अभी फिलहाल देखिए पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इन ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी नहीं है, बट इसकी अवेयरनेस हो रही है. यू कैन वर्क एज एन HR मैनेजर, इवन आई हैव वर्कड एज एन HR मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, एज एन असिस्टेंट मैनेजर HR, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट. बेसिकली जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का, वो रिक्रूटमेंट में लगता है. Because when you are hiring people, तो आपको as an organizational psychologist you can better know कि who is the best fit for the job ना. तो recruitment specialist बहुत important role हो सकता है organizational psychologist. Talent management, talent acquisition manager, as a business behavior analyst और इसके अलावा project manager. These are the roles you can play in an organization as an organizational psychologist. तो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. जब आप HR के साथ काम कर रहे होते हो तो ये नहीं होता कि सिर्फ आप एक स्पेसिफिक वही वाला जॉब
जो आपका रोल है वही आप प्ले कर रहे हो, आप उसके साथ और भी चीज़ें कर रहे होते हो। तो बेसिकली HR में आप कहीं भी फिट हो सकते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, इट्स दैट क्लोज टू HR। अगर हम मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब डिफरेंट डोमेन्स अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स एज अ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट को इतना अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो इवन पाकिस्तान की भी बात करें तो एज एन MS सिर्फ जैसे आप मुझे भी सेशन से पहले बताया थी कि बहदिया में और रिफा में सिर्फ अभी वो मतलब ऑफर कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है सर कि मतलब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऑफर भी नहीं की जा रही उसको इतनी, जो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एक फील्ड है जिसमें हमें जोर देना चाहिए कि आपको चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन आई गेस। तो why we are ignoring these fields and why we are ignoring these aspects? Basically, students thought that IO psychology field is very much saturated right now, and there are limited seats and a job in the market. लेकिन मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी और IO साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए। देखिए, आपने कभी भी बिजनेस करना है, वो किसी भी स्केल का बिजनेस हो, लोकल हो इंटरनेशनल हो, आप खुद अपना कर रहे हैं या फिर किसी के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उन सारे डेवलपमेंट के लिए IO साइकोलॉजिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इवन के वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है, एक पॉजिटिव कल्चर लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर अप्रेजल्स, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि IO साइकोलॉजिस्ट से बेहतर मुझे लगता है कि ट्रेनिंग को असेसमेंट और ट्रेनिंग की इम्प्लीमेंटेशन कोई और नहीं कर सकता। वो चाहे डिफरेंट लेवल्स की, चाहे वो लोअर मैनेजमेंट हो, चाहे वो अपर हो, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो, उनकी ट्रेनिंग्स को स्केड्यूल करना वो बहुत अच्छे तरीके से स्केड्यूल कर सकता है। सेकंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि IO साइकोलॉजी की जो बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजी के हवाले से हुई है, तो ही कुड इम्प्लीमेंट वेरी गुड, ही कुड गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स while assessing the individual or a group. अब मुझे लगता है कि पहले इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इट इज़ गेटिंग पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इवन जब मैंने काम किया है, मैंने आई टोल्ड यू कि मैं SNGPA के साथ काम किया है उनकी असेसमेंट्स में और इसके अलावा UBL में, तो इसकी अवेयरनेस अब हो रही है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल ही इसकी तरफ अटेंटिव नहीं है। तो आई थिंक It's a good thing हो रही है कि और this field is growing. बाहर तो कंट्रीज में बहुत है इसका स्कोप, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, ये फर्दर जो है आगे आई थिंक इतनी ज़्यादा शायद अवेयरनेस भी नहीं है, इस पर इतनी बात नहीं होगी कि बेसिकली इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे हर चीज़ को डिस्कस करें। तो आपका सर ई-कॉमर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, जो आपको प्रोफाइल में से गो थ्रू करी थी। तो आप बताइए कि ई-कॉमर्स का और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का क्या आपस में लिंक, और स्टूडेंट एज अ प्रोफेशन इसको कैसे ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस तरह से आपने भी थोड़ी पहले आपने बात की, सबसे ने भी ये बात की कि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है मार्केट में, इतनी डिमांड नहीं है या फिर जॉब नहीं है। मैं एज अ एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि जब भी आपने मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना है, आपने अपनी कंपनी फॉर्मेशन करनी है, और अपनी कंपनी फॉर्मेशन की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए। आपको वो लोग चाहिए जो कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपने अपनी टीम बनानी है, टीम डेवलप करनी है, डिफरेंट विंग्स बनानी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा सुटेबल पर्सन होना चाहिए। तो इस फील्ड को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी की फॉर्मेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, फिर आपने किस तरह से ट्रेनिंग्स करवानी है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, फिर आपने किस तरह से अप्रेजल्स करने हैं वो पता होना चाहिए। नंबर 4, फिर आप जब SOPs बनाते हैं, JDs बनाते हैं, तो बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस बंदे से किस तरह का काम लेना, उसकी नेचर कैसी है। मतलब नेचर की हम जैसे कहा राइट पर्सन होता है, राइटर के अगर हम एक रॉन्ग डिसीजन लेना है तो वो सिर्फ एक बंदे के लिए एक मसला होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मसला होता है कि वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाता। मैम आपने बताया कि आपके एक्सपीरियंस, आपने UBL का बताया, इससे के साथ एक्सपीरियंस है डिफरेंट असेसमेंट सेंटर्स में। तो एज एन असेसमेंट सेंटर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर आप हमारे ऑडियंस को क्लियर करें कि बेसिकली असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या काम होता है, और एज अ असेसमेंट सेंटर कैसे हम लोग रन कर सकते हैं अगर हम खुद से इनिशिएट करना चाहें। अच्छा, असेसमेंट सेंटर का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप कैंडिडेट का फ्यूचर वो कर रहे होते हो, जज कर रहे होते हो या असेस कर रहे होते हो कि हाउ विल ही परफॉर्म
इन द फ्यूचर, ठीक है। उसकी एबिलिटीज, उसकी स्किल को आप असेस कर रहे होते हो बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि आप एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपने डिज़ाइन की हुई होती हैं, उसको आप उन स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज्ड सिचुएशंस में एक स्पेसिफिक टाइम में आप वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हो कैंडिडेट से। एंड लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप वर्क होता है उसमें, इसके अलावा उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, रोल प्लेज होते हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। और वो क्या होता है कि उससे आप असेस करते हो कि इस सर्कमस्टेंसेस में उसने ऐसे परफॉर्म किया है, तो आप उसे एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाउ विल ही परफॉर्म इन द फ्यूचर फॉर दैट जॉब ना। तो असेसमेंट सेंटर का बेसिकली पर्पस ये होता है। और अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो असेसमेंट सेंटर रन करवा रही हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लाइक मैंने असेसमेंट सेंटर रिक्रूटमेंट के लिए भी किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने प्रमोशंस के लिए किया हुआ है। प्रमोशंस में स्पेशली जो मैनेजरियल लेवल्स की जो प्रमोशंस होती हैं उसके लिए असेसमेंट सेंटर रन करना इज़ वेरी यूजफुल रहता है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो SNGPL में मैंने जब किया था वो उनकी प्रमोशंस के लिए था, और मैंने अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज के लिए किया था वो MPO रिक्रूटमेंट के लिए था। तो असेसमेंट सेंटर का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि बेसिकली कोई राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आप एक तरह से असेस करते हो, एक प्रेडिक्शन देते हो कि ये वाला जो कैंडिडेट है द बेस्ट फॉर दैट। यस। तो और वो किस तरह से करते हो, अपनी साइकोलॉजी बेस्ड जो आपने उस तरह से आप डिज़ाइन करते हो एक्टिविटीज़ को, और वो उनसे परफॉर्म करवाते हो, एंड देन यू कैन बेटर जज। आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, आपने बताया कि एक्टिविटीज़ होते हैं जिनके थ्रू असेस किया जाता है, तो व्हाट आर दोस असेसमेंट टेक्निक्स अगर हम उनकी बात करें इन अ ब्रॉडर टर्म? उसमें आप इवन पर्सनालिटी टेस्ट उनसे लेते हो, उसके अलावा एंट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस ये होती हैं कि आप उनको रोल प्ले सिमुलेशन एक्सरसाइज इस तरह से होती हैं कि उनको उस तरह का आप एक्टिविटीज़ देते हो कि लाइक दे आर इन देयर ऑफिस एनवायरनमेंट है और वो इस तरह से बिहेव करेंगे, उस तरह की उनसे सिमुलेशन करवाते हो। लाइक ग्रुप वर्क करवाते हो उसमें कि ग्रुप में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, हर इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से टीम वर्क कर रहा है, इस तरह से मतलब वो एक्सरसाइजेस स्पेशली डिजाइन्ड होती हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज को चेक करने के लिए, लाइक उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उनका ग्रुप वर्क उनका, और उनकी इंटेलिजेंस इवन उनका थिंग्स लाइक दैट, उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है उनको टेस्ट करने के लिए। अच्छा, मेरी चीज़ है बेसिकली इसमें एक और चीज़ होती है कि डिफरेंट तरह की सिचुएशन में डाला जाता है, डिफरेंट तरह के टास्क दिए जाते हैं और वो सारे टास्क एक खास टाइम फ्रेम के अंदर दिए जाते हैं। अब होता ही है कि नॉर्मल रूटीन में बहुत सारे लोगों की डिफरेंट तरह की मास्किंग होती है। हम ऐसी सिचुएशन में उनको लेकर आ जाते हैं जिसमें उनकी मास्किंग साइड पर हो जाए, उनकी अपनी इनर सेल्फ जो है वो एकदम से बाहर आ जाए, और उस सिचुएशन में जब वो एक प्रेशर में होगा, टाइम के प्रेशर में होगा, एक सिलेक्शन के प्रोसीजर में होगा, तो उसकी अपनी पर्सनालिटी सामने आ जाएगी और उसके अपनी पर्सनालिटी में पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, ग्रुप के अंदर वो किस तरह से कोहेसिवनेस कैसे होती है, ग्रुप के अंदर से किस तरह से बॉन्डिंग वो कैसे करता है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को वो किस तरह से हैंडल करता है, और ग्रुप को किस तरह से लीड करता है, क्या उसमें लीडिंग एबिलिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें उस टास्क के अंदर खुल के सामने आ जाती हैं। तो बेहतर तौर पे हमें आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन किस पोजीशन और कौन से डिपार्टमेंट और किस टाइप में ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आप एक इंसान को अच्छी तरह देख लो कि बंदा है क्या। Exactly. मैं कहती हूँ कि शादी से पहले फिर असेसमेंट होनी चाहिए, आप अपने पार्टनर की पहले असेसमेंट करो। अच्छा, फील्स लाइक कि एज अ लेमैन आपको ऐसा लगेगा कि दे कैन फेक इट, ऐसा लगता है कि दे कैन फेक इट ना, एक सिचुएशन ही है तो कुछ भी मतलब हर बंदा आजकल फेक दे कैन बी नाइस टू ईच अदर। तो लेकिन वो जो जिस तरह से असेसमेंट सेंटर में वो इस तरह से डिजाइन हुई होती है एक्टिविटीज के, दे कैन नॉट फेक इट, वो उनकी रियल सेल्फ जो होती है वो शो हो जाती है। तो और उसमें एक चीज, हाँ, और एक चीज और होती है उसमें कि वो आप असेस एक नहीं कर रहा होता, असेसर एक नहीं होता, they are being assessed by many assessors, more than 2, 3, 4 assessors होते हैं। तो वो एक बड़ा सॉलिड
एक डिसीजन निकल आता है, आप रिलाई कर सकते हो, रिलायबल होता है। यस, वो रिलायबल होता है। एंड देन वो ऑर्गेनाइजेशंस में फिर इस तरह से होता है कि खाली सिर्फ वही नहीं होती, वो एक पार्ट ऑफ उनकी जो भी उन्होंने डिसीजन लेना होता है, असेसमेंट सेंटर उसका एक एक क्राइटेरिया होता है कि ठीक है ये वाली भी आ गई है जजमेंट, और इसके अलावा उनके अदर जो उनकी होते होंगे उनके और जो भी उन्होंने करना होता होगा उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन होता है फाइनल। बट तो इसमें साथ साथ जैसे परफॉर्मेंस है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं जिस तरह से ऑब्जर्व उसको किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के जरिए उसकी चीज़ें निकाली जाती हैं। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी के डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूँ कि जी असद घर में अकेला है कि अचानक। अब यहाँ पे ये होगा कि मैं उससे क्वेश्चन करूँगा और उसको शॉर्ट टाइम दूंगा कि इसके ऊपर आपने 3-4 लाइनों के एक स्टोरी बनानी है, एक स्टोरी राइट करनी है। तो वो बेसिकली वो असद नहीं होगा, वो एक्चुअली वो खुद इंसान होगा, वो अपनी आगे से जो भी स्टोरी आएगी वो अपनी एग्जैक्टली वो अपनी प्रोजेक्शन करेगा, वो अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को आगे बयान करेगा। तो वहाँ से वो फिल्टर आउट होने लग जाएंगी चीज़ें कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर मतलब उस सिचुएशन में ये ऐसे कर सकता है, तो अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर कोई सिचुएशन होगी तो फिर वो क्या करेगा? ओके बेस्ट। तो आपका जैसे मैं भी एक्सपीरियंस के बारे में हमने बात की थी, आपने यूएस और यूके बेस्ड मार्केट में भी काम किया हुआ है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा अगर बताना चाहें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मतलब बहुत फ़नी सा था, या मतलब इस तरह का कि अच्छा ये काम भी होता है यहाँ पे, मतलब इस तरह के लोगों से भी आपका इंटरेक्शन हो जाता है और आप कैसे डील करो फिर उन लोगों के साथ? अच्छा, मैं इस फील्ड में लैंड किया था बैक इन जब ये कोविड का स्पाइक स्टार्ट हुआ था इन 2020। तो उस टाइम पे आई वाज डायग्नोज्ड बाय कोविड-19। एट दैट टाइम आई हैड डिसाइडेड कि मुझे अब इस रैट रेस से बाहर निकलना है, और ये जो 9 to 5 वाली जॉब है मुझे इसको स्किप करना है। ठीक है, मुझे इस कल्चर से बाहर निकल के मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, जहाँ पे मैं अर्निंग करूँगा अपने डॉलर्स में और उसको खर्च करूँगा रुपीस में। अच्छा, तो इस सेंस में फिर मैंने अपने आप को लॉन्च किया। अब हुआ ये कि हम यहाँ पे डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं, वहाँ पे डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं। यहाँ पे हम टाइम ओरिएंटेड हैं। बेसिकली हम घड़ियों को देखते हैं कि जी 9 घंटे पूरे हो गए, 10 घंटे पूरे हो गए, अब हम पैक करके चले जाएं। तो लेकिन वहाँ पर इंटायरली डिफरेंट है। वो लोग टास्क ओरिएंटेड हैं। वो कहते हैं आई डोंट डैम केयर कि आप इस टास्क को 10 घंटों में पूरा करें या 1 घंटे में पूरा करें, टास्क अचीव होना चाहिए। वो टास्क ओरिएंटेड है और हम यहाँ पे टाइम ओरिएंटेड है। हमारे और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा, जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं तो स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है वो टाइम फ्रेम, टाइम जोन का बहुत डिफरेंट होता है, वो आपको एक फेस करना पड़ता है। फिर डिफरेंट क्रॉस कल्चर चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे चीज़ें कि जी हम बहुत ज़्यादा कॉल्स को प्रलॉन्ग करते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है, और सुनाएं, मौसम कैसा जा रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रलॉन्ग करते हैं। वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, टक टक टक, हाय देयर, दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस इज़ दिस, और वो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, छोटी बात करेंगे, उसके बाद कॉल रैप अप कर देंगे। तो ये एक चीज़ है जो कि फ़नी लगी मुझे। वहाँ के डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं, यहाँ पे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। तो आपको एक थोड़ा सा फील होता है चीज़ों के हवाले से। सो मैम हफ्सा, एक जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का नाम लें तो एक सबसे पहली जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वो दैट इज़ HR। तो HR के बेसिकली आईओ के साथ क्या कनेक्शन है, और मतलब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी वाले अगर इसमें किस तरीके से हम लोग, मतलब BS के बाद कोई स्कोप है इस फील्ड में जाने का, या स्पेशलाइजेशन आपको करनी पड़ती है, या कोई स्पेसिफिक कोर्स है, या क्या स्पेशलाइजेशन आपको करनी पड़ती है, और आगे जाके HR में ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, मतलब टाइटल्स हैं जिनमें मतलब स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल हो सकते हैं? आई थिंक BS के बाद तो आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में तो BS के बाद आप BS किन किन उसमें ऑफर हो रहे हैं। क्लिनिकल में साइकोलॉजी रिलेटेड अप्लाइड साइकोलॉजी हो जाएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो जाएगा, लेकिन आप जब मास्टर्स करते हो तो फिर उसी में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। ठीक है, तो उसके बाद अगर, और मेरे ख्याल में जो HR का और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो बेसिक कनेक्शन आता है ना, वो इन जो कोर उनकी जो जो ज्वाइन कर रही हैं इनको, वो आती है रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा कनेक्शन आता है, और इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, और इसके अलावा एम्प्लॉई मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स। ये जो चीज़ें हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल
in HR. जैसे आपने भी रिक्रूटमेंट की बात की, तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब रिक्रूटमेंट्स कर रहे होते हैं, हमने पहले बात की पर्सनालिटीज़ की, टेस्ट की, के पता चल जाता है कि क्या बंदे की पर्सनालिटी है, तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि वाइल रिक्रूटमेंट जो ट्रेनर्स अपने माइंड में रखते हैं, और ट्रेनर्स किस तरीके से मतलब पर्सनालिटीज़ को आपने डिफरेंट बताया कि ये तरीके होते हैं असेस करने के, तो किस तरह की पर्सनालिटी या किस तरह की जो एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वाइल रिक्रूटमेंट, और एज अ ट्रेनर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के डोमेन में आगे जाना है तो मतलब आपको किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि डिफरेंट तरह की डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल है और अलग अलग टाइप के लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट किस्म का है, तो उसमें ज़ाहिर बात है आउटस्पोकन किस्म के और बोल्ड किस्म के फीमेल और फीमेल्स चाहिए होंगे जो कि बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह हैं जिसमें इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत है कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो और वो 16 आवर्स के करीब वो ऑन स्क्रीन उनका टाइम हो, वो आराम से बैठे लैपटॉप के ऊपर काम करें, ज़्यादा इंटरैक्ट ना करें। तो इट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कि आप किस तरह की सिलेक्शन हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल जनरल मेरे से पूछें कि जनरली तौर पे क्या किस तरह के ट्रेड्स चाहिए होते हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि नंबर 1 इज़ ट्रस्टवर्दीनेस। अगर किसी इंसान के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो इतना ट्रस्ट के काबिल नहीं है, क्योंकि कल को मेरी कंपनी की सीक्रेट्स उसके पास होंगे, क्लाइंट्स उसके पास होंगे, क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो उसके पास होगा, डिफरेंट तरह के लोग उसके पास आएंगे। तो ट्रस्टवर्दीनेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, नंबर 1। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि डिफरेंट कल्चर के लोग उसके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि हम लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो लाहौर में अब ये मल्टी कल्चर सिटी बन चुका है। यहाँ पे बहावलपुर के भी लोग हैं, मुल्तान के भी लोग हैं, डेरा गाजी के भी लोग हैं, कराची से इवन लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इस्लामाबाद से आए हुए हैं। तो उस बंदे के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर तरह के लोगों के साथ उठ बैठ के एक प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर ले। फिर उसके बाद मैं आऊँगा कि डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं। देखिए, अब बहुत आसान है प्रॉब्लम करना कि ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ये करना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के लोग आने चाहिए कि जैसे ही प्रॉब्लम आई तो उसकी एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया कि वो उसने किस तरह से कॉप अप करना है, किस तरह से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है, किस तरह से सिचुएशन को जो है वो न्यूट्रल करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है डिफरेंट पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं, लाइक मैनेजमेंट की टेक्निक्स है कि उसमें मैनेजमेंट स्किल्स कितने अच्छे हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है। फॉर एग्जांपल बहुत आसान है कि एक इंसान खुद तैर के जो है वो दरिया अबूर कर लेता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि पूरी एक आप कंपनी को या पूरे ग्रुप को या अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चल के आप वो उस टास्क को अचीव कर लें। टीम वर्क एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक ट्रेट होता है जो कि मतलब एक लीडर में भी आप जब तक टीम वर्क नहीं है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं है। एक एम्प्लॉय का टीम वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमने कुछ अंदर की बातें डिस्कस कर ली हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, अब आपको जॉब मिलेगी। एग्जैक्टली। देखिए, अगर किसी भी बिजनेस को आपने प्रमोट करना है तो वो बिजनेस किससे बनता है? वो इंडिविजुअल से बनता है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद फिर वो इंडिविजुअल टीम बनती है, टीम के साथ फिर वो मैनेजमेंट बनती है, फिर वो आगे आ जाती है कंपनी। तो वो हर इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही नहीं कहा गया था जब वो चांद पे जा रहे थे कि वो जो एक सफाई वाला था वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बहुत हर इंडिविजुअल मैटर करता है, हर इंडिविजुअल। आपका जो भी रोल है किसी ना किसी तरीके से छोटा भी है लेकिन वो एक बड़े एक गोल में हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मतलब पहले आजकल ज़माने में मतलब महंगाई कितनी ज़्यादा हो गया, तो पहली चीज़ जो जहन में आती है पैसा। तो इस फील्ड में अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो आप लोगों का क्या ख्याल है, मतलब फाइनेंशियली कितनी स्टेबल है ये फील्ड? आपको फाइनेंशियली क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है? मतलब एक स्टेबल है कि आप इस पर रिलाई कर सकते हो एज योर फ्यूचर ओरिएंटेड? अगर हम बात करें, आप ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स की बात करें, अगर हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करें, अगर आप ऑनलाइन भी जाओ या वैसे फिजिकली भी जाओ, तो क्या इसमें मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से इस एंगल से देखता हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास स्किल्स हैं, तो फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू। आप जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू। मैं पर्सनली तौर पे ये चीज़ देखता हूँ। देखिए, यही लैपटॉप है, यही इंटरनेट के डिवाइसेस है जो मिशिगन में एक बच्चा बैठा हुआ है एंड ही इज़ अर्निंग मोर देन $5,000।
और यही लैपटॉप है जो यहाँ पे किसी बच्चे के पास है कि वो इससे 10,000 रुपीज़ भी नहीं निकाल पा रहा। Might be watching movies एग्जैक्टली वो नेटफ्लिक्स वो नेटफ्लिक्स पे टाइम ज़ाया कर रहा है, वो फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक इस किस्म की चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता ये कितनी पावरफुल डिवाइस है और इसके कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। तो फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू। हाँ, राइट डायरेक्शन कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और किस तरह से स्किल्स को डेवलप करके जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ उठ बैठ रहे हैं और एक जॉइंट एक एजेंसी कैसे बनाते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात की कि जैसे हम बचपन में वो लिखते हैं ना ऐसे टेक्नोलॉजी के यूजेस, मतलब एक बंदा लिखता था उसके फ़वाइद एक नुकसान, कि आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करें वो डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन आपने बताया बहुत पैसा है, तो अगर हम फिजिकली बात करें मैम, मतलब फिजिकली अगर आप मतलब किसी कंपनी के साथ एज एन HR मतलब काम करो, जैसे आपने बताया कि आप असिस्टेंट ट्रेनर HR आपने काम किया हुआ है, तो उसमें कंपनीज कितनी मतलब पे ऑफर करती हैं, आपकी सैलरी कितनी होती है अराउंड? उसमें तो उसी तरह से है ना कि जिस तरह से आप HR एम्प्लॉई इनका जिस तरह से अर्न कर रहा है वो उसी तरह से आपको भी पे कर रहे होंगे, क्योंकि आप सिमिलर आपको वही जॉब पोजीशंस जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, उस तरह की ही सैलरीज होंगी जैसे वो अपने HR एम्प्लॉइज़ को कर रहे हैं। बाकी उसमें यू नो आप स्टेबल जॉब, आई थिंक इट इज़ लाइक अगर आपने उसी तरीके से देखना है, अगर जिस तरह से अहमद ने बोला आप दूसरे एंगल में देखते हो कि यू नो आपके पास लैपटॉप है, आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फाइनेंशियल्स, यू कैन यू नो आप दूसरे बिग थिंग कि अगर आप इस महंगाई के ज़माने में कह रहे हो फाइनेंस इज नॉट एन इशू, मतलब इसका मतलब है कि आप कर सकते हो, करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और आई थिंक मेरे ख्याल में आप कुछ भी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, अगर आपके पास दूसरी स्किल्स बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही आप डेड हो उस तरह से, तो फिर आपके लिए मुश्किल ही है। मतलब स्किल्स, तो बाकी स्किल्स डेवलप करना और उनको अपडेट रहना, यू नो हर चीज़ के साथ अपडेट रहना, जिस तरह से अब मूव कर रही है आगे दुनिया, उसके साथ अपडेटेड रहना, और फ्रीलांसिंग एंड ऑल ऑनलाइन वर्क और ये सब कुछ, इन चीज़ों के साथ अपडेटेड रहोगे आप, तो फाइनेंशियली आप यू कैन यू नो गेट स्टेबल। यू कैन नॉट रिलाई ऑन सिंगल, आप अपनी जॉब पे आई डोंट थिंक सो कि आप रिलाई कर सकते हो खाली, और आप सोचो कि यू कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हम जो लोग ज़्यादातर जो हैं वो फोकस करते हैं जॉब के ऊपर, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक IO साइकोलॉजिस्ट है, उसने असेसमेंट बहुत अच्छी कर ली है, उसने पर्सनालिटी के डिफरेंट ट्रेट्स और पर्सनालिटी के डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हैं वो इम्प्लीमेंट करना सीख लिए। तो बजाय इसके कि वो एक लोकल मार्केट में अपने आप को सेल आउट करे, वही अपनी स्किल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो उसमें इनरोल होकर अपने जो ये स्किल्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो लोकल मार्केट में उसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहे ना मिले, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब वो डॉलर्स में अर्न करेगा, वही एग्जैक्ट असेसमेंट को इम्प्लीमेंट करके, तो वो फिर रुपीज़ में कन्वर्ट होगी। एग्जैक्टली तो वो आप उसमें चाहे असेसमेंट्स हो जाएं, चाहे अप्रेजल्स हो जाएं, चाहे आपने KPIs डेवलपमेंट होगी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की चीज़ें होगी, तो ये सारा कुछ आप सेल आउट कर सकते हैं। फिर राइटिंग JDs, राइटिंग JDs और इस तरह की जो छोटे छोटे जो जिसमें आप कुछ स्पेशलाइज टाइप कर लो, उसको आप सेल कर सकते हो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। आई गेस हमने काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड कवर कर लिए हैं, और मुझे यकीन है कि हमारी जो ऑडियंस अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को एक डिफरेंट नज़र से देखना शुरू करेगी कि येस इट इज़ अ फील्ड एंड यू कैन ग्रो इन दिस फील्ड। तो इन द एंड ऐसी कोई चीज़ जो आप मतलब कहना चाहें, मतलब अगर UCP स्टूडेंट्स की हम बात करें जो फाइनल ईयर में है, तो अगर आप उनको कुछ सजेस्ट करना चाहें कि वो किस तरीके से अपने फ्यूचर में आगे एक्सेल कर सकते हैं, द लास्ट मैसेज, देन वी कैन कवर अप ऑल दिस। हाँ, मैं उसमें ये कहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट ने, UCP के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी जो कोर्स है उसको कंप्लीट किया, तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक्स को और कुछ ख़ास किस्म के टॉपिक्स को ना रखें, आप अपना जो है विजन वो थोड़ा सा ब्रॉड कर लें। जस्ट नोटेड डाउन कि कौन कौन से स्किल्स मैंने सीखी हैं। फॉर एग्जांपल एक असेसमेंट का स्किल है, असेसमेंट के अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स का स्किल है, ट्रेनिंग्स में कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं, और फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स में आगे कौन कौन सी ट्रेनिंग है। ये सारी ट्रेनिंग को आप नोट डाउन करें, उन सब के ऊपर वर्किंग करें, उनके ऊपर आप लेक्चर बनाकर, इवन दो कि आप वो लेक्चर बनाकर बाहर सेल आउट भी कर सकते हैं और बाहर के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा भी सकते हैं, और वो वाले सारे जो स्किल्स हैं वो आप सेल आउट कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसिंग है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारी स्किल्स बहुत अच्छी अमाउंट पे सेल हो सकती है।
तो बजाय इसके कि वो स्किल्स लेकर आप सिर्फ और सिर्फ स्टक कर जाएं कि मैंने रिज्यूमे लेकर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है, वो वाली चीज़ें लेकर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर हो जाएं। और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, सर्वाइवल द फिटेस्ट की गेम है, बट उसमें उतना ही ज़्यादा रिटर्न बहुत अच्छा है। और आपकी जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो बहुत मैटर करती है। ग्रूमिंग इज अ थिंग कि आप हर वक्त ग्रूम करते रहते हैं आपको, मतलब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड दैट्स द थिंग दैट मैटर्स कि आप साथ साथ लर्न करते रहो। तो मैम हफ्सा आपकी तरफ अगर हम चलें, लास्ट मैसेज। आई थिंक कि साइकोलॉजी में मुझे लगता है जब स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद वो इस चीज़ पे फिक्सेटेड होते हैं कि अब तो आगे क्लिनिकल में ही जाना है। हाँ, और कुछ इधर उधर निकल ही नहीं रहा होता, वो सब क्लिनिकल में जा रहे हैं। हाँ, वो निकल ही नहीं रहे होते, इवन तो वो इंटरेस्टेड होते हैं। HR बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। मतलब पर्सनली मैंने साइकोलॉजी कर लिया था, लेकिन उसके बाद आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि मैं क्लिनिकल में घुसना। तो मुझे इट वॉज़ वेरी मेरे लिए बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग सी एक्साइटमेंट थी मुझे इस चीज़ की कि मैं अभी भी HR वाली साइड पे जा सकती हूँ। तो अभी साइकोलॉजी के बाद इट्स नॉट लाइक कंपलसरी कि आपने क्लिनिकल में ही जाना है। यू कैन जी आप मतलब एक्सपोजर तो हाँ यू कैन आप HR में जाते हो। HR वैसे ही बड़ी मजे की फील्ड है, मतलब आपके इंटरेक्शन आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, जितनी आपकी सोशल लर्निंग होती है। मतलब इस टाइम के हर इंसान अपने अंदर एक डिफरेंट कहानी वो वाली मेंटालिटी है ना एक साइकोलॉजी स्टूडेंट की कि बस अब तो क्लिनिकल ही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसके क्या रीजन है? मतलब अगर हमारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं 90% बच्चे ऐसे ही होता है तो वो बड़ा एक मतलब क्लिनिकल इज अ गुड फील्ड, लेकिन देयर आर अदर फील्ड्स इन साइकोलॉजी में जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में किसी को नहीं नजर ही नहीं आ रही। देखिए 100% जो पॉपुलेशन है उसमें हो सकता है 20% जो है वो डिसेबल हों, साइकोलॉजिकल डिसेबल हों। तो आप चाहे वो 20% को देखना चाह रहे हैं या फिर 80% को हैंडल करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करें अपनी नज़र को। एंड तो इसके साथ हम अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हफ्सा, थैंक यू सर अहमद, एंड इट वाज रियली इन्फॉर्मेटिव टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद बोथ ऑफ यू। एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस, एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड।